ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੇਮ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਆ। ਫਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ 27 ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3.6% ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ 27 ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3.6% ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ x ਆ, x ਦਾ 3.6% 27 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 27 ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3.6% ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਣਾ। 3.6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 1/10। 3.6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਟੇ 'ਚ 10 ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1/100। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1/100 ਬਰਾਬਰ 27। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 27 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ x ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ 27 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 100 ਤੇ 1 10 ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਤੇ 10 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਚੌਕਾ 36, 9 ਤੀਆ 27। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 25 ਚੌਕਾ 100 ਨਾਲ 1 0 ਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਤੀਆ 75 ਨਾਲ 1 0 ਪਈਆ ਤਾਂ 750 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 750 ਦਾ 3.6% ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 27 ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 27 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜੇਕਰ 120 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 20% ਆ। ਹਾਂਜੀ, 120 ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 20% ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ x ਦਾ 20% 120 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 120 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 20% ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 120% ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 20% ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 120 ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੁਣਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ 100 ਬਰਾਬਰ 120। 20 5 100। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12 5 60 ਨਾਲ 1 0 ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 600। ਮਤਲਬ 600 ਦਾ ਅਸੀਂ 20% ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 120 ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ
तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हुण इस संख्या का मैं 120% कढ़ना वा तो 600 का 120% दा मतलब मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि हुंदा गुणा परसेंटेज का मतलब बटा 100 2 जीरो नाल 2 जीरो कट वारो शेक 72 नाल जीरो पई आ तो 720 मतलब आंसर आ गया 720 600 का 120% 720 बनेगा। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो मैं तुहाडे सामने बोर्ड ते लिखे आ जेकर x अनुपात 22 3 अनुपात 4 है अते y अनुपात 3 अनुपात 4 है तो एक्स वाई प्लस जेड अपॉन 3z किस दे बराबर होवेगा। देखो गिवन की आ एक्स वाई 3 4 अते वाई जेड 3 4 ये मैं थोनों नैबर मैथड करवाया होया वा मतलब गवांढी मैथड जिन्हों बोल देने आ शॉर्ट ट्रिक दे विच ठीक है। तो एक होर भी मैथड करवाया वा। सब तो पहला देखो एक्स वाई एक्स ये कोरसपोंडिंग कितना वा 3 वो हेठां लिख दो वाई ये कोरसपोंडिंग कितना वा 4। फिर अगली लाइन दे विच तुसीं देखना अगली लाइन च बाई कि कोरसपोंडिंग ये कोरसपोंडिंग कितना 3 आ तो इत्थे बाई लिखोगे ठीक है। जेड ये कोरसपोंडिंग कितना 4 आ तो इत्थे 4 लिखोगे। सेम इस तरह अगे कोई वेरीएबल दिता वा तो उहदे विच भी तुसीं अप टू सोन यही प्रोसैस रखोगे। हुण देखो जिहड़ी जगह एम्पटी पई है ना उहदे ते तुसीं नाल वाला भरना उपर जां हेठां वाला नहीं नाल वाला भरना। जिवें इहदे नाल 3 पिया सी 3 भरता इहदे नाल 4 पिया सी 4 भरता हेठां वाला नहीं भरना ठीक है जां उपर वाला। 3 तीए 9 4 तीए 12 चौकम चौके 16 हुणे किसी सांझे पहाड़े च आउंदे नहीं आउंदे मतलब मेरे कोले एक्स अनुपात वाई अनुपात जैड आ गया 9 अनुपात 12 अनुपात 16। हुण तुसीं पता की करना वा की पता करना वा एक्स वाई जैड अपॉन 3z तो ये मेरे को अनुपात मिले आ ਇਹਦਾ मतलब मेरे को ये कोरसपोंडिंग x की आ 9x क्योंकि x 9 बन रहा। सैकेंड ते आ y y 12 वा तो मतलब y की आ 12x ਇਹਦਾ मतलब होंदा ना कि 12 गुणा x 9 गुणा वा z 16 गुणा वा ठीक है। इस करके मैं वेरीएबल रह रही हाँ z हो गया 16x। हुण जो चीज़ पता करनी आ उहदे विच फिल करना शुरू कर दो। असीं की पता करना x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z 3z मतलब 3z किन्ना वा 16x ठीक है। तो x किन्ना वा 9x y 12x z 16x मैं इन्हां दी जगह ते भरते ठीक है। जदों असीं भरांगे तो किन्ना बन गया देखो पहला असीं 12 ते 16 नूं प्लस कीता तो मेरे को बन गए 28 28 दे विच मैं 9 नूं ऐड करूँगी तो ये मेरे को बन जानी है जी 37 ठीक है। तो यह बन गया मेरे को 37x 16 तीया 48 नाल x पे x नाल x कैंसल आंसर आ गया 37 अपॉन 48 तो ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर पे आए ठीक है। ईजी सीगा। हाँ जी अगला सवाल देखो सेम एज इट इज़ ही तुसी शेयरिंग पता करनी है इत्थे तक तुहाडा सम अगला वा जिहड़ा सेम आ जल्दी नाल आपदी नोटबुक उठाओ तो करो मतलब तुसी अगले दे विच ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना वा ते जल्दी नाल अनुपात पता करो ये किहड़े आ। हाँ जी देखो तुहानूं की दिता होया वा पहली लाइन दे विच जदों तुसी पढ़ोगे उन्हें बोलिया कि एक कारोबार दे विच ए अनुपात अते सी ने 2 अनुपात 1 मतलब ए अनुपात सी किन्ना दिता वा 2 अनुपात 1 दिता वा अते ए अनुपात बी तुहानूं दिता होया ए अनुपात बी किन्ना दिता वा 3 अनुपात 2। देखो पहला मैं तुहानूं करवाया गवांढी मैथड वो तो तुहानूं पता लग गया होना मैं तुहानूं बोलिया सी कि 2-3 मैथड मैं तुहानूं करवाए हुए आ ठीक है। हुण मैं तुहानूं एक होर मैथड दसदी हां इहदे विच कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करन दा होर मैथड दोनों दे विच की कॉमन आ दोनों दे विच ए कॉमन आ दिख रही है ना दोनों दे विच ए कॉमन आ जे ए कॉमन आ तो ये कोरसपोंडिंग ये 3 आ तो यदा मतलब इस रेशो नूं असीं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे ये कोरसपोंडिंग ए 2 आ तो यदा मतलब इस रेशो नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे ठीक है। हुण 3 दूनी 6 नाल आ गया 3 फिर 3 दूनी 6 नाल बन गया 4 ठीक है। हुण जो चीज़ कॉमन सी वो तो मेरे को कॉमन ही रहेगी ए बन गया 6 बी कितना आ गया बी आ गया 4 तो सी कितना आ गया सी आ गया 3
ठीक है। ए दे कोरसपोंडिंग मिल गया 6 ते बी मिल गया आपां नूं 4, बी ए दे कोरसपोंडिंग देखना वा ते सी मिल गया 3। एक जो मैं पहला मैथड करवाया उहदे कोरसपोंडिंग भी तुसीं कर सकदे हो। हुण जिहदा असीं हिस्सा पता करना वा, बी का हिस्सा पता करना, ठीक है। जो बी का हिस्सा पता करना, बी ए दे कोरसपोंडिंग 4 आ, उहनूं तुसीं लिखना उपर, हेठां की लिखना इन्हां सारियां दा जोड़, इन्हां सारियां दा जोड़ हैगा 13। देखो 6 4 10, 10 3 13। हुण उन्हां नूं किन्नी राशि प्राप्त होई आ, उन्हां नूं राशि प्राप्त हुई आ 157 नाल 300, ठीक है, मतलब 1,57,300। इनू मैं 13 ते डिवाइड करके देख लैंदी, 1,57,300 नूं जदों 13 ते डिवाइड किया, 1 13 एकम 13, मगर बच गए 2, 13 दूना 26, मगर बच गया 1, उपरों उतारिया 3, 13 एकम 13, नाल आ गई जीरोज़, ठीक है। ये बन गया 121 नाल 2 जीरो। तो हुण इनू जदों असीं मल्टीप्लाई करांगे 4 दूनी 8 4, मतलब 48,400 बी का हिस्सा वा। किसी का भी तुसीं पैसे पता करने होण ना, किहदे हिस्से किन्ने पैसे आए आ, तां उत्थे तुसीं अनुपात पता कर लो। अनुपात तुहानूं जरूरी नहीं कि इत्थे तां अनुपात गिवन सीगा, उत्थे तुहानूं कंडीशन गिवन होगी कि ए नूं बी नालों दुगणे मिले आ, तां उहदा अनुपात तुसीं बना सकदे हो। ए नूं बी नाल दुगणे मिले आ तां मतलब यह कंडीशन बन गई ए बटा बी बराबर 1/2, तो अनुपात बन गया। इस तरह बोल रही है कि तुसीं अनुपात दे विच चेंज कर लो, तो उस तो बाद सेम प्रोसैस है। जे इत्थे ए दा पुछया हुंदा तां 6 उपर आ जाना सी, जे सी दा पुछया हुंदा तां 3 उपर आ जाना सी, ठीक है। कुछ भी पता करना तो इस तरह तुसीं कर सकदे हो, ये बहुत ईजी मैथड आ। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हां। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देख सकदे हो, 10 संख्यावां की औसत 15 है। औसत की गल होगी तो कदे भी औसत का फॉर्मूला ना स्किप करियो। औसत बराबर है संख्यावां का जोड़ बटा संख्यावां की गिणती। बस एको ही फॉर्मूला इस औसत दे विच जो वरत्या जांदा, बाकी सारा ये तो ही निकल आउंदा। देखो किवें निकलेगा। उन्हें बोलिया 10 संख्यावां की औसत 15 वा। हुण सानू 10 संख्यावां गिवन आ जिन्हां दी औसत कितनी आ 15। मैं औसत दे हेठां औसत लिख लिया, इत्थे आ जाना 10 संख्यावां दा जोड़, 10 संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां की गिणती। गिणती कितनी है संख्यावां की 10, तो 10 संख्यावां दा जोड़ कितना आ गया जी 150, ठीक है। हुण देखो अगे की आ, ये पहली लाइन सी जो मैं उहदे तो कढ लिया, मतलब इहदा विच यूज होना वा। अगे बाद विच पता लग्या कि 36 नूं गलती नाल 26 पढ़ लिया गया। गलती की हुई आ कि 36 सही नंबर सीगा, गलती नाल उहनूं 26 पढ़ लिया गया। तो पहला मैं 26 माइनस करूँगी, जिहड़ी गलती आ उहनूं माइनस कर दो, जिहड़ी गलती आ उहनूं माइनस कर दो, जां डायरैक्ट देख लो कि फर्क 10 दा वा ऐड कर दो। पर इहदे विच तुसीं गलती कर दोगे, एग्जाम दे विच हो सकदा इस तो उल्ट आ जाए, ठीक है। तुसीं की देखो इहदे विच एक जो गलती है उन्होंने माइनस कर दो। जो तुम माइनस करोगे 10 चों 6 गए 4, मगर रह गए 4, ये बन गया जी 124, ठीक है। ये बन गया 124। 124 हुण तुसीं जिहड़ी सही नंबर उन्होंने ऐड कर दो, उन्होंने जोड़ दो, 6 4 10, ठीक है। उस तो बाद ये बन गया 160। मैं तुहानूं पहले ही कहा सी कि इन्हां दा डिफरेंस चेक कर लो, जोड़ दो। पर इहदे विच की आ कि हो सकता तुम एग्जाम के जाके पजल हो जाओ, इस करके याद रख लो जो गलती है माइनस करो, जो सही है उन्होंने जोड़ो। हुण सानू सही पता लग गया कि सही संख्यावां का जोड़ 160 है। पहला 150 बन गया सी ना, फर्क पै गया सी। हुण जोड़ कितना आ गया सही संख्यावां का 160। जे सही संख्यावां का जोड़ 160 आ तो संख्यावां की गिणती कितनी है 10। मैं औसत का फॉर्मूला लगा रही हाँ। औसत बराबर है संख्यावां का जोड़, संख्यावां का जोड़ है 160 तो बटा संख्यावां की गिणती। तो नवीं औसत आ गई 16। उन्हें यही तो बोलिया सही औसत पता करो, सही सम पता लग गया, सही जोड़ पता लग गया 160, तो जोड़ बटा गिणती बराबर 16। तो नवीं औसत कितनी आ गई 16। हाँ जी, अगला सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट भी आ, पटवारी के एग्जाम के विच भी आया वा ये, तो सब इंस्पैक्टर के विच भी आया वा। हाँ जी, ए बी और सी का औसत भार 65 किलोग्राम आ। हुण ए बी सी का औसत भार 65 ग्राम आ, तो ए प्लस बी प्लस सी का भार कितना होगा, जोड़ ही करना। संख्यावां का जोड़ मैं तुहानूं बोलिया वा, ठीक है। संख्यावां का जोड़ बराबर औसत गुणा संख्यावां की गिणती। संख्यावां कितनियां मैं 3, क्योंकि 3 जाणियां का औसत भार दिता होया ना, तो तिन्नां दे भार का जोड़ 65 गुणा 3 आ गया, ठीक है। जदों इहनूं करांगे गुणा 5 तीए 15, 6 तीए 18 ते 19, ये बन गया जी तिन्नां दे भार का जोड़ 195 किलोग्राम। सेम एज इट इज़ जेकर ए बी का औसत भार 60 किलोग्राम है,
हाँ जी ए ते बी दा औसत भार किन्ना वा 67 किलोग्राम आ। तो ये भी मैं संख्यावां का जोड़ कढ़ लिया, मतलब ए बी दे भार का जोड़ ये बन गया 134 किलोग्राम। 7 दूनी 14, एक गया हासिल 6 दूनी 12 ते 1 13। ठीक है, अगे उन्हें बोलिया कि बी ते सी का औसत भार 57 किलोग्राम आ। हुण बी ते सी का भी पता लग गया किन्ना वा 57 किलोग्राम आ। ठीक है, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 ते 1 11, ये बन गया जी 114 किलोग्राम। अगे देखो तो बी का भार पता करो। हुण असीं बी का भार पता करना वा, बी का पता करना वा मैं इन्हां दे विचों कोई भी एक इहदे विच भर दिन्नी आ। पहली इक्वेशन देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 195, यही बनी है ना। हुण इहदे विच मैनूं बी सी की जगह ते मैं लिख दिन्नी आ 114, क्योंकि 114 के बराबर आ। बी प्लस सी ये उधर जाके की हो जाऊगा माइनस हो जाऊगा। जो इनू 114 नूं असीं माइनस करांगे तो ये साडे कोले बन गया जी 81 किलोग्राम। ठीक है, 81 किलोग्राम ही बनेगा। जो 85 195 के विचों 114 माइनस करांगे, 5 चों 4 गए 1, 9 चों 1 गए 8। ठीक है, हुण इहनूं मैं की करदी हाँ, दूसरी इक्वेशन दित्ती हुई आ, ए पता लग गया, ए दा भार मैं भरता 81 प्लस बी का असीं पता करना वा, इस करके बी में रख लिया। ठीक है, बी बराबर है 134 माइनस 81, तो ये बन गया जी मेरे को 53 किलोग्राम। ठीक है, 4 चों 1 गए 3, 13 चों 8 गए 5, 53 किलोग्राम। मतलब बी का औसत भार कितना आ गया, बी का भार कितना आ गया 53 किलोग्राम। ये तो मैं 3 इक्वेशनां बना लियां। ठीक है, कोई भी एक तुसीं भर सकदे जी, चाहे तुसीं इहदे विच ए प्लस बी भर दिंदे, फिर तुसीं सी तो कढ़ लेना सी, बी तुहानूं पता लग जाना सी। किसी भी तरह तुसीं सॉल्व कर सकदे हो इन्हां नूं। ठीक है, मैं जिवें पहली ये दूजी पहली च भरी आ, तुसीं तीजी भर सकदे सी। ठीक है, इस तरह। हाँ जी, अगला सवाल असीं करदे हां। हाँ जी, अगला सवाल तुसीं देख सकदे हो, किसी राशि ते सधारण ब्याज 6 महीनों में 4% की दर नाल 150 रुपये बनता है, तो राशि पता करो। देखो सिंपल इंटरस्ट के जोड़े सवाल आ बहुत ज़्यादा ईजी होंगे आ, बस एक स्टेटमेंट जरूर समझ लेना तुसी। देखो 6 महीनों के विच की पहला सब तो पहला तुहानूं की दिता होया समा दिता 6 महीने। असीं एक फॉर्मूला करते हैं सधारण ब्याज का। ठीक है, सधारण ब्याज का ये जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा वा, ये की हुंदा वा मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। ये जिहड़ा फॉर्मूला बना ये सालां दे लई बनिया हुंदा। आपां नूं इत्थे 6 महीने दित्ते आ, तो एक साल दे विच किन्ने महीने हुंदे आ 12। तो मतलब इत्थे बन गया 1/2 साल। इहदा मतलब की आ अद्धा साल। ठीक है, इनू तुसीं साल च कन्वर्ट करना ही करना जो तुहानूं महीने दिते आ। जे सालां च समा दिता तो फिर तो डायरैक्ट ही फिल कर दोगे। क्लीयर होया? हाँ जी, अगे हुण उन्हें बोलिया 4% की दर ते जिहड़े भी नंबर दे मगर 4% लिखिया ना, जिहड़े भी नंबर दे मगर प्रतिशत पाया वो हमेशा दर हुंदी आ। इत्थे दित्ती आ 4%। हुण उन्हें बोलिया वा स्टेटमेंट नूं तुसीं समझो कि सधारण ब्याज ते 6 महीनों विच 4% की दर ते 150 रुपये बनता है। सधारण ब्याज बनता है कितना बनता वा 150। मतलब हुण तुहानूं इत्थे देता उन्हें ब्याज, तो वह कहता राशि पता करो। ब्याज 150 रुपये दिता वा, राशि का मतलब की है इत्थे कि जो तुसीं मूल लिया सी ना ब्याज ते 4% ते वो तुसीं पता करो भी कितना लिया सी। ठीक है, हुण देखो मूलधन असीं पता करना वा, मैं इहदी जगह ते प्रिंसीपल पी लिख लिया। सधारण ब्याज मैनू गिवन आ 150 रुपये, दर मैनू पता 4 आ, समा कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो बटे दे विच 100 हुंदा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुहानूं पता। एक गल मेन ध्यान रखना, जे तुहानूं उहने दर पुछिया वा तां तुसीं तुहानूं प्रिंसीपल गिवन होगा, फिर तुसीं प्रिंसीपल इत्थे लिख देना, मूलधन इत्थे लिख देना, दर नूं एज इट इज़ रख लेना। जे समा पुछिया होवे सवाल दे विच तां फिर तुसीं इत्थे टी लिख लिओ, बाकी सारियां चीज़ां फिल कर देनियां। जो चीज़ तुसीं पता करनी आ उहनूं एज इट इज़ ही रख देना, बस ईजी आ। फॉर्मूला तां इक्को एक ही आ जिहड़ा तुहानूं पता होना चाहिदा वा। हुण 25 चौका 100, देखो 25 चौका 100 बन गया ना, तो 25 दूना 50, ये बन गया P/50। 50 इधर आके की हो जाऊगा गुणा, क्योंकि उधर की हो रहा डिवाइड। 15 5 75 नाल 2 0, तो जिहड़ा मूलधन किन्ना वा 7500 आ गया। जिहड़ा तुसीं 4% ते लिया वा
तो 150 रुपये ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर है। बहुत ईजी सी। अगला सवाल इस तो भी ज़्यादा ईजी है, ना फॉर्मूले की लोड़ आ, शॉर्ट ट्रिक नाल करांगे। सधारण ब्याज ते एक निश्चित रकम 3 सालों के विच 815 रुपये हो जाती है। हुण उहनूं ब्याज लग के ना किसी रकम नूं ब्याज लग्या 3 सालों का, तो कितनी बन गई वो 815। वो कहते 4 सालों के विच वो 854 हो गई। मतलब मैनूं 1 साल का ब्याज पता लग जूगा ये तो। देखो कोई राशि आ जिहड़ी 3 सालों के विच 815 हो गई, 4 सालों के विच 854 हो गई, तो मैनूं ब्याज पता लग जूगा सिंपली 1 साल का फर्क देख लो इन्हां दे विच किन्ना वा। तो 15 चों 14 चों 15 गए, इत्थे रह गया 9, इत्थे रह गया 39। 1 साल का ब्याज 39 रुपये आ। हुण ये राशि 3 सालों के विच 815 होई सी, 3 सालों के विच कोई राशि 815 बन गई ब्याज लग के, तो 3 सालों का ब्याज कितना बनया गुणा करके देख लो, चाहे 3 बार जोड़ लो 39 नूं। ठीक है, क्योंकि दूजे साल का भी 3900, तीजे साल का भी 3900। ठीक है, ये बन गया 117। 3 सालों का ब्याज 117 वा, तो कोई राशि आ जिहड़ी 3 सालों के विच 815 बनी सी, वो जो 3 सालों का ब्याज घटा दो तुसी। ठीक है, जे तुसी पहले 4 सालों का लेना तो 4 सालों का ब्याज घटा दो, जे 854 रुपये चों घटाने तो, क्योंकि ब्याज लग के वधिया ना। हुण ब्याज देख लो कितना लग्या, 15 चों 7 गए 8। ठीक है, इत्थे साडे कोले बन गए जी 10 रह गए सी, मगर ये बन गया 9, 98। ये बन गया मेरे को 698। 698 ऑप्शन बी दे विच पिया वा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उन्हें बोलिया सी कि सधारण ब्याज ते एक निश्चित रकम 3 सालों के विच 815, 4 सालों में 854 हो जाती है, तो वो तुसी रकम दसो किहड़ी आ। तो रकम कितनी सी 698 रुपये सी, जिहड़ी 3 सालों के विच ब्याज लग के 815 हुई आ, ते 4 सालों में 854 हुई आ। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल असीं करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल तुसी देख सकते हो। एक व्यापारी ने एक वस्तु ते 8% की छूट दी ਅਤੇ 15% का लाभ कमाਉਂਦਾ है। ये 8% का डिस्काउंट दे के भी वह 15% का लाभ कमा रहा। जेकर वस्तु का वेच मुल 250 रुपये है तो वस्तु का खरीद मुल कितना है। मन के चलो बाजार दे विच वस्तु का जिहड़ा वेच मुल आ वो कितना वा 250 रुपये आ, पर एक व्यापारी आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 8% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ 250 ਦਾ 8% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। जे ਵਧਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ मतलब ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 108 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ 92% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 92% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਨੂੰ 9200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ 2300 ਬਟਾ ਹੇਠਾਂ 10 ਪਿਆ ਵਾ। ठीक है, ये मैं इनू कट करता तो ये बन गया 230। मतलब जोड़ा व्यापारी है ना वो 230 ते वस्तु नू वेच रहा वा। व्यापारी आ जोड़ा नवा आ गया वेच मुल, न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, वो 230 ते वेच रहा वा, फिर भी 15% का लाभ कमा रहा। जे 15% का लाभ कमा रहा तो तुसी वस्तु का खरीद मुल पता करना कि उन्हें वस्तु किन्ने च खरीदी सी। ठीक है, तो ये की आ सब तो पहला तुसी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ही देखो। मैं एक ही फॉर्मूला याद करवानी हुंदी है सेलिंग प्राइस का। जदों लाभ होया होवे, जदों लाभ परसेंटेज गिवन होवे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। हुण इत्थे तुहानूं सेलिंग प्राइस पता 230 आ, लाभ कितना होया 15% का, 100 प्लस 15% ले लिया तो 115 बन गया। ठीक है, बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस 230 गुणा 100 बटा 115 बराबर कॉस्ट प्राइस। हुण जदों मैं इहनूं कट करूँगी 5 के पहाड़े तो इत्थे बन गया 23 तो इत्थे बन गया 20। ठीक है, 23 एकम 23 नाल 10 जीरो पई है तो जीरो लगा ली, तो ये बन गया 10 गुणा 20 कितना बन गया 200। मतलब उन्हें वो वस्तु 200 रुपये च खरीदी सी जिहदे ते वो 8% डिस्काउंट देने तो बाद भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ। मीना ने 1200 रुपये प्रति मुल ते, प्रति लिखिया मतलब एक। ठीक है, प्रति का मतलब एक। मीना ने 1200 रुपये प्रति मुल ते 2 पखे खरीदे आ। 1200 का एक खरीदया वा। ठीक है,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ 2 ਖਰੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 2400 ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2400 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਟੋਟਲ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 5% ਹਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਤਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ ਹਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ 5% ਦੀ ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ 1200 ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 10% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5% ਹਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ 10% ਹਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5% ਲਾਭ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 10% ਇੱਕ ਨੂੰ 5% ਹਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 10% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੈਂ। 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 95 ਗੁਣਾ 12 ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 110 ਗੁਣਾ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 95 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 1140। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, प्लस जो 11 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 132 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1320 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2460 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਸੀ 2 ਪੱਖੇ 2400 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ 1200 ਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 2 ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੇ 2400 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੇਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ 2460 'ਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਬਟਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੁਣਾ 100। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖੋਗੇ 2400, 1200 ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ 2400 ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 60 ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 8 ਚੌਕਾ 6 ਚੌਕਾ 24। ठीक है, 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 6 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 4। 10 ਵਟਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2.5%। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2.5% ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਹੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ A B ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ A ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਅਤੇ C ਮਿਲ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਦਾ ਖਤਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ C ਅਤੇ A ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ 12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ A ਤੇ B ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ B ਤੇ C 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ C ਅਤੇ A 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A plus B plus B plus C plus A plus C ਬਰਾਬਰ 101/20 plus 1/10 plus 1/12। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ ਜੀ 60। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2A 2B 2C। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 60 ਤਾਂ 20 30 60 10 60 12 5 60। ठीक है, 6 ਤੇ 3 9 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 14/60। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ A plus B plus C ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। 2 ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 7 ਦੂਣੀ 14 ਮਤਲਬ 7/60। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 60/7। ਠੀਕ ਹੈ, 60/7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ
60 ਵਟਾ 7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 60 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣੂਗਾ 8×5 ਮਗਰ ਵੱਜ ਗਏ 4। ਠੀਕ ਹੈ, 8×5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੇਠਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ, रिमाइंडर उपर, जो क्वेश्चन आया वो साइड ते लिखना वा। ठीक है, तो 8 सही 4/7 ऑप्शन सी च पिया। इत्थे बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल होकर डी ऑप्शन ना लगा देन, इस करके मैं तुहानूं ये बहुत ध्यान नाल दस्सिया कि टाइम एंड वर्क एक दूजे के ओपोजिट होंदे आ, ते लास्ट जो आंसर आया उहनूं भी कन्वर्स करांगे, असीं उल्टा के लिखांगे। ठीक है, हुण अगला सवाल देखो, अगला ईजी है इस तो, ये थोड़ा लेंथी चलिया गया सीगा, लेंथी जाण दा भी कोई ये मीनिंग नहीं गा, मैं स्टैप बाय स्टैप तुहानूं करवा रही हाँ, इस करके ज़्यादा लेंथी है। जेकर तुहाडी प्रैक्टिस हुई होगी तो असीं बहुत स्टैप विचों कट कर देवांगे, तो यही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक इन्ना तो ही बनती है, वो कोई इदां नहीं गा कि बाहरों कितों होर आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इन्ना तो ही ली जाती है, बस तुहानूं कंसैप्ट नहीं क्लीयर करवाया जाता उहदे च। हाँ जी, अगे देखो स्टेटमेंट पढ़ो, समझी तुहानूं अपने आप ही पता लग जाना कि इहदे विच करना की आ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, अमित एक काम नूं 20 दिनां विच, वरुण उसे काम नूं 30 दिनां विच, मतलब अमित एक काम नूं किन्ने दिनां विच करदा 1/20 च, ते वरुण उसे काम नूं किन्ने दिनां च करदा 1/30 च। ठीक है, जे वो 6 दिनां लई काम नूं मिल के करन, काम नूं किन्ने दिनां लई मिल के करन 6 दिनां लई, पहलां असीं टोटल कढ लैंदे आ A+B कि दोने मिल के काम नूं पूरे दिन, पूरा कदों खत्म करनगे, पूरा किन्ने दिन लगणगे जदों काम पूरा खत्म करना होवे। ठीक है, तो इन 1/20 + 1/30 एलसीएम इहदा भी लवांगे 60 ही बनूगा, 20 × 30 30 दूना 60, 5/60 12 5 × 60 1/12, मतलब दोवें जदों मिल के काम खत्म करनगे तो 12 दिनां च काम खत्म कर देणगे, पर वो काम नूं 6 दिनां च ही करदे आ, काम नूं सिर्फ ते सिर्फ 6 दिनां दे विच करदे आ, दोवें तो मिल के 12 दिनों च कर रहे हैं, पर वो कट्ठे 6 दिन ही करते हैं, मतलब अद्धा काम बच जाऊगा। ठीक है, ये कड्ढण लई तुसीं 6 नाल गुणा कर दोगे, इत्थे तुहाडे कोल आ गया 1/2, इहदा मतलब ये होया, देखो इत्थे कुछ होर भी बन सकता वा, इस करके तुहानूं दस रही हाँ, जरूरी नहीं उत्थे 1/20 1/30 बने, इस करके मेरे कोल बन गया वा। ठीक है, उत्थे कुछ होर भी आ सकता, ये बन गया 1/20, इहदा मतलब ये आ कि जो काम नूं 6 दिनों के विच करनगे ना इकट्ठे, तो अद्धा काम खत्म कर देणगे, तो काम टोटल किन्ने करने हुंदे आ, एक काम कंप्लीट करना हुंदा सी। मान लो एक कंध बन रही आ, वो इक्को ही कंध बन रही है ना, तो उन्होंने 6 दिनों के लिए किसी कारीगर ने किया तो अद्धी खत्म करती, तो माइनस करके, मतलब एक चों माइनस करके आंसर लिखना तुसीं 1/2, ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो, 4.5 गुणा 3.7 प्लस 4.5 गुणा 6.3 डेसीमल दे विचों एंड फ्रैक्शन दे विचों है, फ्रैक्शन एंड डेसीमल। ठीक है, तो सब तो पहला देखो ये 4.5 ये भी पिया, ये भी पिया, दोनों चों मैं कॉमन कढ़ लिया, क्योंकि दो रकमां वा जिहड़ियां आपस प्लस हो रही वा, तो दोनों के 4.5 कॉमन है, इस करके मैं कॉमन कढ़ लिया, मगर की बच गया 3.7 प्लस 6.3। इस तरह हेठां 1.5 कॉमन निकल रहा, मगर बच गया 8.4 माइनस हो रहा 7.4। ठीक है, हुण देखो पहला असीं 3.7 ते 6.3 नूं प्लस करांगे, 6 3 10 ते पॉइंट लग गया, उस तो बाद इत्थे तुहाडे कोले बन गया 10। ठीक है, 7 ते 3 10 पॉइंट लग गया, 6 3 9 ते 1 10, इत्थे बन गया 10। पॉइंट तो बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब ये सारा तुहाडे कोले कितना बन गया 10। हुण सेम इस तरह हेठां तुहाडे कोल 8.4 माइनस 7.4 हो रहा वा, तो बन गया 1.0। पॉइंट तो बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब इत्थे तुहाडे कोल आ गया 1। हुण देखो 4.5 इहदा मैं अब चलो पहला आप पॉइंट लगा लेने, कंसैप्ट बाद दसांगी। ठीक है, नाल की आ ब्रैकेट दे विच इत्थे 10 आ गया उपर, हेठां कितना बन गया, हेठां बन गया तुहाडे कोल 1। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व करने तो बाद मेरे को 1 बनया वा। हाँ जी, अगे देखो 4.5 मैं पॉइंट हटा लिया, बटा 10 लग गया, बड़ा बटा लिख लिया इत्थे। ठीक है, नाल इत्थे की है 0, क्योंकि 10 गुणा हो रहा वा ना 4.5 नाल 450 बन गया, जो गुणा 10 लिख लो। ठीक है, तो इत्थे बन गया 15/10, इस 10 नाल जां तां ये 10 कैंसिल कर दो, जो ये कर दो, सेम ही रहना वा, कोई प्रॉब्लम नहीं गी इहदे विच।
ठीक है। 15 एकम 15, 15 30 45, तुसीं इत्थे भी कर सकते सी 15 एकम 15, 15 30 45, पॉइंट दोनों दे विच हैगा तो कोई वड्डी गल नहीं है। 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ गुणा करोगे 4.5 ही बनना सीगा, ठीक है। तो इत्थे तुहाडे कोल बन गया 30, तो ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है कि 30 आंसर है, क्योंकि देखो इत्थे भी जो मैं कट करता 30 बन गया ना, 3 गुणा 10, 30 बटा 1, तो इसका मतलब 30 हुई है, ठीक है। अगे असीं करते हैं 14वां सवाल, छोटी भिन्न दसनी है जां अगले च वड्डी भिन्न दसनी है। दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ, हरेक बार किसी ना किसी एग्जाम दे विच बार-बार पूछे जाते हैं ये, ठीक है। देखो स्टेटमेंट ही चेंज हो सकती है, कंसैप्ट चेंज नहीं हो सकता, पर जेकर असी जीके की गल करिए तो जीके दे विच पता ही नहीं कि जीके कित्थों आनी है तो कित्थों नहीं आनी, किहड़ा टॉपिक मेन आ। पर मैथ रीजनिंग के मेन टॉपिक सानू पता, कंसैप्ट ही कंसैप्ट सेम आ, बस एक 2 मिनट जे 3 पाया वा तो 4 आ जाऊगा उत्थे, ठीक है। इन्ना के फर्क रहिंदा इन्हां दे विच। हुण असीं जदों भी भिन्नां दा कंपैरिजन करना, छोटी जां वड्डी दसनी आ, तुसीं पहलियां 2 भिन्नां चक लो। हुण देखो असीं दसनी की इहदे विचों, असी दसना वा छोटी भिन्न। जे छोटी दसना वा तो सब तो पहला देखो 7 नूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, जिहदा उपरला नंबर लै रहे हो उहदे ही उपर लिखना वा। 4 दूनी 8, छोटा किहड़ा वा 2/7, फिर 8 छोटा वा कि 21, 8, जे 8 छोटा वा तो 2/7 लैके चलोगे, ठीक है। अगे तीसरी चक लो, तीसरी का कंपैरिजन करो ये 1/9, 9 दूनी 18, 1 7 7 आ, जिहदा नंबर उपरला रह रहे हो ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ही लिखना। हुण देखो 7 छोटा कि 18, 7, तो मतलब 1/9 आ गई छोटी। हुण ਇਹਦਾ कंपैरिजन चौथी नाल कर लो, 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 एकम 8, 9 5 45, तो किहड़ी छोटी है 8, तो 1/9 छोटी भिन्न है। ये ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, अगला सवाल असीं करते हैं। अगले दे विच वड्डी दसनी है तो वड्डा नंबर ले चलो, करो जल्दी नाल आप। हाँ जी, पहलियां 2 का कंपैरिजन करो, 15/16 नाल 11/12, 15 नूं 12 नाल गुणा करांगे, 15 दूणा 30, नाल आ गया तुहाडे कोले 15, ते बन गया तुहाडे कोले जी 180, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो बाद 16 नूं 11 नाल करांगे तो ये तुहाडे कोल बन गया 176। असीं वड्डी भिन्न दसनी है तो इन्हां चों वड्डा किहड़ा 180 आ, तो मतलब 15/16 वड्डा वा। इहदा कंपैरिजन करो तीसरी नाल 17/19 नाल। हुण तुसीं 15 नूं 19 नाल मल्टीप्लाई करो, पहला 19 5 95, 19 एकम 19, 9 9 18, ये बन गया 285, ठीक है। फिर 16 नूं तुसीं 17 नाल गुणा करनी है, ये बन गया 102, तो इत्थे बन गया तुहाडे कोल 17, ये बन गया 272, तो किहड़ा वड्डा वा 285 वड्डा वा। तो वड्डी भिन्न ले लो 15/16, इहदा कंपैरिजन करो 13/15 दे नाल, 15 15 कितना हुंदा वा 225, तो 16 नूं 13 नाल गुणा करांगे 6 16 3 48, ठीक है। इत्थे बन गया 16, ये बन गया 208। असी वड्डी भिन्न दसनी है तो वड्डी किहड़ी होगी 15/16, ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। वड्डा नंबर ले जाना क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो बाद, जो छोटी दसनी है तो छोटा नंबर ले जाना। हाँ जी, अगला सवाल असी करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल तुसीं देख सकते हो, 176 + 124 का होल स्केयर माइनस 176 माइनस 124 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 176 गुणा 12400, ठीक है। तो 176 गुणा 124 लिखिया वा। सब तो पहला तुसीं देखो, जो असीं 176 + 124 नूं ऐड कर देंगे फिर स्केयर करांगे तो सम कितना लेंथी हो जाऊगा। तुसीं एक फॉर्मूला किया होया, जिवें इहनूं ए मान ला, इहनूं बी मान ला 124 नूं, ठीक है। तो ये बन गया a + b का होल स्केयर माइनस a माइनस b का होल स्केयर डिवाइडेड बाई ab, यही बनया ना। मैं 176 नूं a मान लिया तो 124 नूं b मान लिया। हुण देखो ये तुसीं फॉर्मूला किया होया 6th क्लास दे विच a² + b² + 2ab माइनस a² + b² माइनस 2ab, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हेठां डिवाइडेड आ गया a/b। हुण ये ब्रैकेट दे बाहर माइनस पिया वा, जदों मैं ब्रैकेट नूं खोलूंगी तो ये बन गया माइनस a² माइनस b² प्लस माइनस प्लस 2ab, ए माइनस दा b माइनस दा
एक प्लस का वा मतलब कैंसल हो गए। हेठा की आ गया ए बी। हुण देखो उपर की आ गया 2AB प्लस 2AB मतलब 4AB। हेठा की आ गया ए बी नाल ए बी कैंसल, 4 ऑप्शन ए ऑप्शन इत्थे राइट आंसर है। ठीक है, जदों भी इदां दे सवाल होण कि एक दे विच माइनस हो रहे होण ए प्लस बी दा होल स्केयर माइनस ए माइनस बी दा होल स्केयर डिवाइडेड बाय ए बी, सेम नंबर हेठा गुणा हो रहे होण ते नाल ही माइनस हो रहे होण तां उस समय की आंसर हमेशा 4 ही होऊगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही कंसैप्ट लग के 4 आऊगा आंसर। हाँ जी नैक्सट, एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस कितना दिता होया 40 किलोमीटर का दिता होया। वो कहता स्पीड नाल कितनी स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति नाल तय करता है। तो इत्थों देखो अपने कोले स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा स्पीड इंटू टाइम। मैनू इत्थे स्पीड पता वा 8 किलोमीटर आ, डिस्टेंस पता 40 आ, तो टाइम कितना हो गया 40 बटा 8, 8 5 40 तो टाइम आ गया 5 घंटे। ठीक है, इस लाइन तो मैनू पता लग गया पहली तो कि टाइम कितना वा 5 घंटे आ। हुण अगे भी कोई लाइन लिखी हुई है इस करके मैनू D1 S1 लिखता। क्लीयर होया, बहुत इंपॉर्टेंट सामा पूरी यात्रा की औसत गति लिखी है। औसत गति तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसैप्ट है, इहनूं समझ लो। डिस्टेंस पता सी स्पीड पता सी, ये वाला कंसैप्ट यूज़ करके जो चीज़ नहीं पता वो असीं कढ लैनी है। ठीक है, हुण अगली लाइन 'च देखो उन्हें कहा कि बाकी 30 किलोमीटर की गति मतलब डिस्टेंस 2 भी आ जिहड़ा 30 किलोमीटर नाल वो कवर करदा ते उहनूं टाइम लगदा वा 2 घंटे। 2 घंटे इत्थे सानू स्पीड कड्ढण दी लोड़ नहीं, इत्थे मैनू टाइम की लोड़ पई क्योंकि असीं एवरेज गति पता कर रहे हैं। गति का एवरेज का मतलब की हुंदा संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां की गिणती। बट इहदे विच सिर्फ कंसैप्ट थोड़ा जिहा ही एवरेज का यूज़ हुंदा कि संख्यावां का जोड़। संख्यावां का जोड़ मतलब जदों भी तुसीं औसत गति पता करनी है ना, औसत गति ध्यान दो, औसत गति इत्थों देखो गति का की फॉर्मूला बन रहा स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। औसत गति दे विच की करना कुल गति बटा कुल समा। ठीक है, कुल समा कुल गति कितनी बन गई इत्थे 30 प्लस 40 कुल गति कितनी होगी 70 किलोमीटर। सॉरी गति नहीं दूरी, कुल दूरी। ठीक है, डिस्टेंस हुंदा है, डिस्टेंस हुंदा ना डी ते डिस्टेंस अपॉन टाइम बस ते कुल दूरी बटा कुल गति। हाँ जी, ये हो गया 70 तो इत्थे टाइम कितना आ गया कुल टाइम 5 ते 2 7 मतलब वो एवरेज स्पीड आ जी ना वो कितनी रह गई 10 किलोमीटर। ठीक है, औसत गति कितनी आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुसीं ध्यान दे विच रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम आ। तो ये टॉपिक मैं तुहानूं अगे भी करवाया होया इकल्ला, तुसीं उत्थों भी कवर कर सकते हो बिल्कुल कंसैप्ट वाइज। इत्थे तो हुण आपां ज़्यादा सम कर लिया ना, मेरी थोड़ी जी जो बोलदी आ तां आवाज़ थोड़ी जी फिसल रही है, जिवें आपां कह दिंदे आ कि इत्थों भी गलत बोलता सीगा, इत्थे भी मैं गति लिखता सीगा, इदां दीयां मिसटेक्स हो रही वा। चलो कोई गल नहीं, मैं नाल दी नाल वैसे दस रही हाँ कि इत्थे इहनूं कट करके 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि जिहड़ी स्पीड आ उहदी यूनिट ये हुंदी आ। ठीक है, नैक्सट सम असीं करदे हां। हाँ जी, अगला सवाल आ जिहड़ा तुहानूं बार ग्राफ दे विच्चों आया होया, ये जिहड़ा बार ग्राफ आ किसी कंपनी के आमदन अते खर्च नूं दर्शा रहा। आमदन आ जिहड़ी नीले रंग दे विच बनाई है मैं तुहाडे सामने ग्राफ ते जो खर्च आ वो लाल रंग दे विच तुहानूं दिख रहा होना। ठीक है, पूरा क्लीयर। तो हुण आपां गल करदे हां जिहड़े हेठां दित्ते गए पुछे गए प्रश्नां दे आंसर दो। ये लाइनां लिखियां हुंदियां तुहानूं पता है, वो मैं इन्ना नहीं लिखिया। तो ये वाले प्रश्न जिन्हां दे तुसीं आंसर देने आ साल 1982 तो 1986 तक कंपनी की औसत आमदन कितनी आ। कंपनी की औसत आमदन कढ़नी आ, औसत आमदन कढ़न दे लई किहदी कढ़नी आ आमदन। आमदन आमदन लिखिया मतलब नीले दी तुसीं औसत कढ़नी आ। ठीक है, इत्थे कितना आ गया 30। आमदन देख लैंदे आ, सब तो पहला लिख लैंदी आ मैं इत्थे 50। ठीक है, इत्थे आमदन कितनी हुई आ, इत्थे हुई आ जी आमदन की जे असीं गल करिए इत्थे हुई है 40 दी। ठीक है, अगे 60 ते अगे भी 60। तो हुण असीं औसत पता करनी आ। इत्थे मैं 18 नंबर सवाल सॉल्व करने वाली हाँ। औसत का फॉर्मूला मैं तुहानूं दस्सिया उपर भी पहला फस्ट सम दे विच संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां दी गिणती।
ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 30 ਤੇ 50 80, 80 ਤੇ 40 120, 120 ਤੇ 40 20 ਤੇ 60 120 ਤੇ 60 180, 180 ਤੇ 60 240, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 240 ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 4 5 20, 8 5 40, ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 48। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ 48 ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਜੀ 1983 ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਾ ਅੰਤਰ। 1984 ਚ ਦੇਖੋ 1983 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1983 ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। 1983 ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1983 ਚ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ 30 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ 50, ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 30, ਤਾਂ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 1984 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1984 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖ ਲਓ। 1984 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ 40 ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ 30, ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 30 ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 10 ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਲ 20 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10। ਮਤਲਬ 20 ਚੋਂ 10 ਗਏ 10 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10 ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕੰਪਨੀ ਏ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਲ 2003 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2006 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ 400 ਆ, ਇਹ 500 ਆ, ਇਹ 550 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 550, ਫਿਰ 500 ਤੇ 400, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5 5 10 10 ਤੇ 4 14, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1450। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2006 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 900 ਦਾ, ਫਿਰ 600 ਦਾ, ਫਿਰ 550 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਤੇ 6 15, 15 ਤੇ 5 20, ਇਹ 2050 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ 1450 ਅਨੁਪਾਤ 2050, 1450 ਬਟਾ 2050, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਦੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, 4 5 20, 1 5 5 41 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ 2 5 10, 9 5 45, 39 ਬਟਾ 41 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 39 ਅਨੁਪਾਤ 41 ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਈਜੀ ਸਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੀ ਸੀ, 29 ਤੇ 41। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।